ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمنا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ اور پیارے ذرا دیکھو، اب سرکار غازی پاک کی ننھی سی عمر ہے، آپ 12,000 علیہ رحمہ سے علم دین مصطفیٰ بھی سیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ علم دین مصطفیٰ سیکھ رہے ہیں، میرا غازی دوسری طرف نیزہ چلانا سیکھ رہا ہے۔ ایک طرف غازی سرکار ہے، علم دین مصطفیٰ سیکھ رہے ہیں، دوسری طرف اسی ننھی سی عمر میں تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں۔ سرکار غازی پاک جو ہے، آپ کی عمر طیبہ 9 برس کی ہوتی ہے تو تمام تر علوم ظاہری اور علوم باطنی سے آپ سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سرکار غازی پاک کی شہ سواری کا عالم یہ تھا کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ گھوڑا کتنی تیز رفتار کیوں نہ ہو، میرا غازی دوڑے کر کے گھوڑے پہ سوار ہو جایا کرتا تھا۔ 6-7 سالوں کی ننھی سی عمر ہے لیکن گھوڑے پہ سوار ہو رہی ہے۔ میرا غازی جب تلوار چلا رہا ہے تو اپنے وقت کے اچھے اچھے بادشاہوں کے لڑکے رش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اے غازی، آخر تیری تلوار میں کون سا کمال ہے، اے غازی تیری تلوار میں کون سا کمال ہے۔ غازی پاک نے کہا تھا کہ اے بادشاہوں کے لڑکوں سن لو، میں ساتھ خیبر کا جو ہے، میں ساتھ خیبر کی اولاد ہوں، میری رگوں میں خون علی موجود ہے، میری رگوں میں خون علی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سرکار غازی پاک کی جو ہے اسی طریقے سے عمر بڑھتی رہی ہے، زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ سرکار غازی پاک کی عمر مبارکہ ہے 18 سال کی ہو گئی ہے۔ اب سرکار غازی پاک کے دل میں ایک تمنا ابھرتی ہے کہ کسی طریقے سے بھارت چلا جاؤ، کسی طریقے سے ہندوستان چلا جاؤ۔ ہندوستان میں جہاں جہاں پر جو لوگ اللہ کا نام لینے والے نہیں ہیں، وہاں پر اللہ کی تبلیغ کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بڑے شارٹ جملے میں کہوں گا، شہادت میں بیان نہیں کر سکتا، مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سرکار غازی پاک ہے جب آپ اجازت کو لے کر کے چلے ہیں تو سندھ سے ہوتے ہوئے ملتان میں پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ ملتان میں پہنچے ہیں اپنے چند سپاہیوں کو لے کر کے تو وہاں کا ایک زمیندار تھا، وہاں پر ایک زمیندار تھا جو قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے تھا۔ جب اس نے سنا کہ غازی پاک کی معیت میں چند لشکر و سپاہ موجود ہیں تو اس نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا اور بھیج کر کے کہا کہ جاؤ اور غازی پاک سے کہہ دو کہ اس طریقے سے بلا روکو ٹوک ہماری سرزمین پہ داخل ہو جانا یہ کون سی ہمت ہے۔ جاؤ غازی سے کہہ دو کہ اگر زندگی سے پیار ہے تو الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں وہ قاصد یہ بات کہتا ہے تو میرا غازی دولہا ارشاد فرماتا ہے، ارے نادا تجھے معلوم نہیں ہے، جا کر کے اپنے زمیندار سے کہہ دینا کہ ہم جو ہے ہمارے جد کریم حضرت فاتح خیبر کے زمانے سے ہمارے آباد طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ہم کہیں پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کلمہ توحید کی، کلمہ رسالت کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فیصلہ تلوار سے کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غازی پاک ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں، آپ فتح جابی حاصل کر لیتے ہیں، وہاں سے آگے بڑھے ہیں۔ آپ نے اجودھن پہ حملہ کیا ہے۔ کون سا اجودھن؟ وہی اجودھن پیارے کہ جس کا دوسرا نام پٹن شریف ہے۔ کون پٹن شریف؟ وہی پٹن شریف کہ جہاں پر اللہ کا محبوب بندہ حضرت بابا فرید الدین تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار جگہوں پر فتح حاصل کرتے ہوئے سرکار غازی پاک ہے جب آپ دہلی میں پہنچے ہیں۔ کون دہلی پیارے؟ وہ دہلی کہ جہاں کا راجہ مہیپال تھا، بڑا طاقتور راجہ تھا، بڑا ہی ہمتی راجہ تھا، لشکر و سپاہ بہت زیادہ تھے۔ اس کی طاقت کی وجہ سے قرب و جوار کو چاہے لے لو چاہے دور دراز کو لے لو، کوئی بھی اسے ٹکرانے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت محمود غزنوی ہے جب آپ نے لاہور کو فتح کیا تھا تو لاہور کو فتح کرنے کے بعد میں محمود غزنوی نے حکم دیا تھا کہ اے میرے سپاہیوں چلو اب ہمیں دہلی کو فتح کرنا ہوگا۔ تو آپ کے وزیروں نے کہا تھا حضور ابھی مناسب نہیں ہے، ہم اس پر کب حملہ کریں گے جب کسی جانب سے ہمارے اوپر کوئی خطرہ نہیں رہ جائے گا۔ تو محمود غزنوی نے اپنے وزیروں کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے آپ غزنی واپس چلے گئے تھے، لیکن آپ ہی کا بھانجا ہے سرکار غازی پاک ہے۔ آپ جب دہلی کی سرزمین پہ پہنچے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اور جب اس راجے کو معلوم ہوتا ہے کہ غازی پاک جو ہے وہ دہلی پہ حملے کی غرض سے حاضر آ چکے ہیں تو بہت بڑا لشکر لے کر کے وہ
गाजी के मुकाबले में पहुंचा है। गाजी के चंद लश्करों सिपाही दोनों तरफ से जंग होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। एक रोज लड़ाई होती है, सुबह से शाम हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तनखाइन के लोग अपने अपने जो है खीमे में चले जा रहे हैं, रात भर आराम करते हैं। सुबह होती है, जंग हो रही है, लेकिन ना तो शिकस्त होती है ना तो फतेह होती है। इस तरीके से 40 रोज तक बराबर जंग होती रही। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गाज़ी पाक है, परेशानी के आलम है। आप सजदे में सर को रख देते हैं और रख करके रो रो करके दुआ करते हैं कि ऐ मौला, अगर गाज़ी पाक इतने बड़े लश्कर से आज मुकाबले के लिए उतर आया है तो महज तेरी जात पे आज अगर गाज़ी पाक जो है वो इस लश्करों के साथ में अपनी गर्दनों को कटा रहे हैं तो मौला तेरे इस्लाम की सरबलंदी के लिए कटा रहा है। ऐ मौला, गैबी इमदाद फरमा करके गाजी को फतह नुसरत अता फरमा दे। इतना सुनना था कि सरकार गाज़ी पाक का सर अभी सस्ते में है कि लश्कर इस्लाम आज 2-4 लोगों के साथ में लश्कर इस्लाम में आकर के दाखिल हो गए हैं। इस तरीके से सरकार गाज़ी पाक को बेहद खुशी होती है और जो दुश्मन थे वो भी थपड़ा जाते हैं कि सैफुद्दीन सालार भी गाजी के लश्कर में आ चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब 40वें रोज है, मेरे सरकार गाज़ी पाक है शरफुल मलिक से एक साइड में मशवरा फरमा रहे थे कि महिपाल का बेटा एक गोपाल होता है, वो अचानक आकर के और गाजी के सामने आकर के ऐसी तलवार मारता है कि सरकार गाज़ी पाक ने अपनी गर्दन को तो बचा लिया मगर आपकी बीवी शरीफ जो है वो जख्मी हो जाती है। तो दांत आपके जख्मी हो गए हैं। सरकार गाज़ी पाक के जब दांत जख्मी हो जाते हैं तो शरफुल मलिक अपनी तलवार को फिजा में लहरा देते हैं और लहराने के बाद में गोपाल की गर्दन पे ऐसी तलवार मारते हैं कि गोपाल पर झपकने से पहले जमीन पे अब सरकार गाज़ी पाक है, आप अपने कीमे में गए हैं, आप मरहम पट्टी करते हैं और मरहम पट्टी करने के बाद में कसम खुदा की जब गाजी दूल्हा मैदान कारज़ार में उतरा है तो ऐसी तलवार चलाया है कि तारीख ये बतलाती है कि गाजी की तलवार जिस साइड से रुक कर ले रही है सबों की सफाई चीरती हुई नजर आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरीके से सरकार गाज़ी पाक ने दिल्ली को भी आपने फतेह कर लिया है और दिल्ली को फतेह करने के बाद में अपने साथियों में से एक साथी को आपने दिल्ली के तक नशीब बैठा तक पे बैठा दिया है और बैठाने के बाद में गाज़ी पाक ने कहा था कि ऐ लोगों सुनो सुनो, गाज़ी पाक अगर हिंदुस्तान में आया है तो तलवार चलाने के लिए नहीं आया है। गाज़ी अगर हिंदुस्तान में आया है तो बादशाहत करने के लिए नहीं आया है। गाज़ी अगर हिंदुस्तान में आया है तो हिंदुस्तान के चंद मकाम को फतेह करने के लिए नहीं आया है। ऐ मेरे लोगों सुन लो, ये गाज़ी सरकार उस वक्त तक तलवार चलाता रहेगा जब तक कि पूरे भारत के अंदर इस्लाम का झंडा गाज़ी पाक है। आप दिल्ली को फतेह करने के बाद में कन्नौज की जानिब रुख करते हैं, मेरठ की जानिब रुख करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कटरा में आपने फतेह हासिल की है, मानकपुर में आपने फतेह हासिल की है। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर इस्लाम के झंडे को गाड़ता हुआ जब मेरा गाजी बहराइच की सरजमी पर पहुंचा है। आओ जरा देखो प्यारे, सरकार गाज़ी पाक है जब बहराइच की सरजमी पर पहुंचे हैं तो उन मक्कारों ने बहराइच की सरजमी पर अगर तारीख उठाएंगे तो देखेंगे मालूम हो जाएगा कि कुल 3 मार्के हुए हैं। बहराइच की धरती पर कितने मार्के हुए हैं? 3 मार्के हुए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहराइच शरीफ गए होंगे, बोलो गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन ऐसे लोग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शहर बहराइच के अंदर कोई ऐसी जमीन है ही नहीं कि जहाँ पे हम अपने कदम को सही तरीके से रख सके। वो बहराइच की तारीख है, वो बहराइच का मार्का है, वो बहराइच की शहादतें हैं। और देखो प्यारे, सरकार गाज़ी पाक है, पहला मुहारका हुआ है, सरकार गाज़ी पाक को फतेह होती है। दूसरा मुहारका हुआ है, सरकार गाज़ी पाक को फतेह होती है। लेकिन जब तीसरा मुहारका आता है, जब आखिरी लड़ाई होती है तो उन दुश्मनों ने अल्लाह अकबर कबीरा गालिबन 19 या 22 पूरे हिंदुस्तान के राजाओं ने मिलकर के और आपस में ये मीटिंग की थी कि अरे ये शेर खुदा
तलवार चला रही है, सरकार गाजी पाक भी तलवार चला रही है। उन्होंने एक नापाक मंसूबा बनाया था कि हम जो है वो धोखे से सरकार गाजी पाक को शहीद कर देंगे, और मक्कारों ने जमीन में लोहे के कीलों को गाड़ दिया था ताकि घोड़े जब दौड़ करके जाएंगे तो कीलों से जख्मी हो जाएंगे, और जो लश्कर सिपा होगा वो घोड़े से जमीन पे आ जाएगा। इस तरीके से शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बारूद का भी इंतजाम किया गया है, जमीनों में कीले गाड़ दी गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तुर्की लश्कर इस्लाम है, अब दुश्मनों पे टूट पड़ा है, बहुत घमासान की लड़ाई होती है। आखिरकार लास्ट में सरकार गाजी पाक है अपनी सवारी पे तशरीफ फरमा है, चारों तरफ से दुश्मनों ने सरकार गाजी पाक को घेर लिया है, और एक ऐसा निशाना साधा है, ऐसा नेजा मारा है, ऐसी तीर मारी है कि गाजी को जैसे तीर लगती है खून का फव्वारा जारी हो गया है, खून का फव्वारा जारी हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गाजी पाक का पूरा जिस्म मुबारक खून से तरबतर हो गया। मेरे गाजी के हाथों में जो पकड़ थी वो ढीली पड़नी शुरू हो गई है। सरकार गाजी पाक है अपनी सवारी से आप जमीन पे आने वाले थे कि आपका एक दीवाना सिकंदर है जो आगे बढ़ता है कि आए गाजी, जब तक ये सिकंदर दीवाना रहेगा गाजी के कदम जो है गाजी का सर मुबारक जमीन पे दीवाना आगे बढ़ा है, और सरकार गाजी पाक के जिसने अतार को अपने गोद में ले लिए है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सरकार गाजी पाक है सिकंदर दीवाने की गोद में है। अल्लाह अल्लाह। सिकंदर दीवाना रो रहा है कि है गाजी सरकार, अब आप तो तशरीफ लेकर के चले जाएंगे, है गाजी सरकार पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम के झंडे को लहराना था, है गाजी पाक जब आप हिंदुस्तान छोड़ करके चले जाएंगे तो आपके पास में इस्लाम के झंडे को कौन लहराएगा। तो सरकार गाजी पाक ने मुस्कुराया और मुस्कुरा करके फरमाया कि ऐ सिकंदर सुन, अभी तू देखता जा, मेरे बाद में अल्लाह तबारक व तआला इस धरती पर एक से बढ़कर के एक वलियों को भेजता रहेगा। तकरीबन मेरे 100 सालों के बाद में भारत की जमीन पे कबीरा। और आप लोगों ने देखा है कि सरकार गाजी पाक के तकरीबन 100 सालों के बाद इसी भारत की सरजमी पे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं, और जब आपने इस्लामी पतन को लहराना शुरू किया है तो 90 लाख से ज्यादा लोगों को कलमा पढ़ा से निकाल करके इस्लाम में दाखिल करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सा गाजी, कौन सा गाजी? किस गाजी की बात हो रही है? मैं उस गाजी की बात कर रहा हूँ कि जिस गाजी के दायर का आलम ये है कि जहाँ पर मादादार अंधों को शिफा मिलती है। मैं उस गाजी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर सफेद दाग वालों को शिफा मिलती है। उस गाजी का जिक्र हो रहा है कि जहाँ पर कोढ़ियों को शिफा दी जाती है। उस गाजी की बात हो रही है जहाँ पे बेऔलादों को औलाद से नवाजा जाता है। उस गाजी की बात हो रही है जहाँ पे बेचारों को चैन मिलता है। उस गाजी की बात हो रही है जहाँ से बेकरारों को करार मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस गाजी पाक का जिक्र जमील हो रहा है। और जरा प्यारे जरा देखो बारिश की सरजमी की क्या शान है, मेरे गाजी की क्या शान है। अपने वक्त का एक मर्द मुजाहिद है, अपने वक्त के वली अल्लाह है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बंदगी मियां अलैहि रहमा है। आपका एक खादिम रहता है, एक खादिम आपका होता है जो हज्जाम होता है। उस हज्जाम का मामला ये था कि हफ्ते में एक मर्तबा वो अपने हुजूर की खिदमत किया करता था। हजरत बंदगी मियां की खिदमत में हाजिर होता था, आपके बाल को तराश करता था, आपके नाखून को तराश करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अचानक एक रोज वो पहुंचता है अपने हुजूर की बारगाह में, अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में, अपने आका की बारगाह में। एक रोज पहले पहुंच जाता है तो हजरत बंदगी मियां ने फरमाया कि ऐ मुरीद ये बता, ऐ हज्जाम, आज तू एक रोज पहले क्यों आ गया, आज तू एक रोज पहले क्यों चला आया, तेरी आने की तारीख ये नहीं है। तो वो हज्जाम कहता है कि हुजूर हाथ जोड़ करके मैं आपकी बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि आज
आज ही आप अपने बाल को तरसवा ले, क्योंकि कल सरकार गाजी पाक का उस होने वाला है, मैं गाजी के उसमें जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस जो है उस अल्लाह के महबूब बंदे ने कहा था कि तुझे हर साल तू गाजी की बारगाह में जाता है, अगर एक साल नहीं जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो हज्जाम ने कहा था कि हुजूर आप एक साल की बात कर रहे हैं, अरे एक साल का जो दिन होता है, एक दिन मेरे लिए एक साल के बराबर गुजरता है। दीदारे गाजी के लिए, गाजी के दीदार के लिए मैं हमारा मचलता रहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर मुझे जाना है, मुझे बाहर जाने की इजाजत दी जाए। चुनांचे हुजूर मखदूम बंदगी भी अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया कि ऐ हज्जाम सुन, अगर तुम्हारे जाना ही चाहिए तो मेरी भी एक जो है, मेरी भी एक गुजारिश है। वो हज्जाम कहता है हुजूर बोले, आप इरशाद फरमाते हैं कि एक खत मैं तुझे लिख करके दे रहा हूँ, जब तू बाहर की धरती पे पहुंचेगा तो फला बाग में चले जाना, वहाँ बाग में तुझे एक घोड़े पे नौजवान सूट लिबास में जो है मलबूस होता हुआ तुझे मिलेगा। मेरा खत उस नौजवान को दे देना, जो नौजवान तुझे जवाब देगा वो जवाब ला करके मुझे दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुरीद वहाँ से चला है, बारह की सरजमी पे पहुंचा है, दयारे गाजी में हाजिर है। गाजी की बारगाह में सातों सलाम का नजराना पेश करता है, नजराने अकीदत को पेश करता है, और पेश करने के बाद में बताए हुए बाग की तरफ चल पड़ा है। बाग में पहुंचा था तो क्या देख रहा है कि सामने से एक नौजवान आ रहा है, घोड़े पे सवार है और सूट लिबास में मलबूस है। लेकिन जब वो नौजवान उस हज्जाम के करीब में पहुंचा तो उस नौजवान के हैबत से हज्जाम कुछ बोलने की ताकत नहीं कर पाया, वो खामोश कर रहा। वो नौजवान सामने आता है और आते ही इरशाद फरमाता है कि ऐ हज्जाम बता, तेरे हाथ में जो खत मौजूद है ला मुझे दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हज्जाम जो है वो खत को सरकार को जो है उस नौजवान के हाथ में दे देता है। नौजवान खत को अपने हाथों में लेता है, लेकिन खत को खोला नहीं है, खत को पढ़े बगैर जवाब लिखते हैं, और जवाब लिखने के बाद में उस हज्जाम को दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ ये जाकर के अपने आका को दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो हज्जाम सोचो फिक्र में पड़ा है कि आखिर ये कैसा नौजवान था जिसकी हैबत मुझ पे तारी हो गई थी, ये कैसा नौजवान था जिसने खत को भी नहीं पढ़ा और उसका जवाब दे दिया। चुनांचे हज्जाम अपने आका की बारगाह में पहुंचा है, और बारगाह में पहुंचने के बाद में उस खत को पेश किया है, और पेश करने के बाद में कहा कि हुजूर जरा एक बात बताइएगा कि जब मैं बारिश में पहुंचा था और फला बाग में मैंने जिस नौजवान को खत दिया था, आखिर वो नौजवान कौन था, और जो खत आपने दिया था खत में क्या लिखा हुआ था, जो नौजवान ने भेजा उसमें क्या लिखा था। तो हजरत बंदगी मियां ने इरशाद फरमाया कि अरे नादा, तुझे मालूम नहीं है कि जिस नौजवान की ज़ियारत तूने की है वो कोई और नहीं है बल्कि वही तो सैयद सालार मसूद मसूद गाजी है। अब हज्जाम में चैन हो जाता है, कहता है कि हो तो मैं हमेशा गाजी के दीवानगी में तड़पता रहा, मैं गाजी गाजी कहता रहा, मैं पहाड़ी हाजी देता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुझे जो है मौका अता फरमाया था कि गाजी के बारगाह में मैंने गाजी की जियारत कर ली। हुजूर आप पहले बदला देते तो हजरत मखदूम ने फरमाया, अरे तेरे लिए इतना क्या कम है कि तूने अपनी निगाहों से गाजी दूल्हे का दीदार कबीरा। अब वो हज्जाम की बेकरारी बढ़ जाती है, वो अर्ज करता है कि वो जो खत आपने तहरीर किया था, आखिर खत का मजमून क्या था, आपने क्या लिख करके भेजा था। तो हजरत मखदूम बंदगी ने इरशाद फरमाया कि मैंने खत में ये लिखा था कि ऐ सैयद सालार मसूद गाजी, आखिर क्या बात है, बिना वजह आप लोगों को परेशान करते रहते हैं, अपनी चौखट तक खींचते रहते हैं। ऐ गाजी सरकार, आप अल्लाह की मखलूक को आखिर बिना वजह परेशान क्यों कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हज्जाम ने कहा कि हुजूर गाजी पाक ने क्या जवाब दिया। तो आप फरमाते हैं कि गाजी दूल्हा ने जवाब लिखा कि ऐ बंदगी मियां, अरे जब तुम अपने एक दीवाने को रोक नहीं पाए तो मेरा दीवाना तो दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। मैं अपने दीवाने को कैसे रोक सकता हूँ। ऐ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सरकार गाज़ी पाक है। बोले
खत्म कर दे एक और बात सुने आओ जरा देखो बस आखिरी गुफ्तगू उलमा के खुसूसी तवज्जो का होता है कि यही उलमा है जिन्हें देख करके अवाम सबक हासिल करती है, यही उलमा है जिनके चाल ढाल को देख करके अवाम चलना सीखती है, अवाम बोलना सीखती है, अवाम सुनना सीखती है, यही उलमा है जिसका तर्ज अमल अवाम का तर्ज अमल हुआ करता है। और जरा देखो प्यारे किसकी तारीफ बयान की जा रही है, जो ताजदार रूहानियत है। आखिर ताजदार रूहानियत का मतलब क्या है? ताजदार रूहानियत कहते क्या प्यारे मेरे सरकार गाज़ी पाक की बारगाह तो वो अजीम तरीन बारगाह है कि खुद हज़रत मखदूम सिमरा अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों मैंने गाज़ी की बारगाह में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को 70 मरतबा गाज़ी की बारगाह में कभी बच्चे की शक्ल में आ रही है, कभी नौजवान की शक्ल में आ रहे हैं, कभी बूढ़े की शक्ल में आ रहे हैं। हज़रत मखदूम पाक फरमाते हैं कि गाजी की बारगाह को छोड़ करके किसी जगह पर मैंने हज़रत खिज़र को इतना आते जाते हुए नहीं देखा। ये गाजी की बारगाह है कि जिस बारगाह में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम 70 बार हाज़िरी का शर्फ हासिल किया। और देखो प्यारे गाजी की शान तो वो है कि जो अपने वक्त का सय्याहे आलम है, इब्ने बतूता है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला, पूरी दुनिया में जो है चलने वाला, वो भी सरकार गाजी पाक के बारगाह में शर्फयाब हुआ है। और देखो प्यारे हज़रत मोहम्मद जो है हज़रत मोहम्मद तुगलक है जो खिलजी बादशाह है, हज़रत फिरोज मोहम्मद शाह तुगलक है जो खिलजी बादशाहों में से आता है। एक मर्तबा की बात है, उन दिनों की बात है। अल्लाह एक जो है घर की मकाम पे ये था और एक जंग में मसरूफ था। अल्लाह अकबर कबीरा वो वक्त दूर नहीं था कि मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक को फतेहयाबी ना मिलती। आप जो है शिकस्त खा करके लौटते। अल्लाह अकबर कबीरा आप जंग में मसरूफ हैं, लेकिन हुस्न इत्तेफाक तो देखो, मेरे गाजी का फैजान तो देखो, गाजी का करम तो देखो कि उनकी वालिदा मोहतरमा है अपने घर की छत पे खड़ी है और छत पे खड़ी होकर के क्या देख रही है कि एक हुजूम जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है, जिस हुजूम के हाथों में झंडा है, जिनके हाथों में जो है जिनके हाथों में झंडा है, जिनके हाथों में जो है वो झंडा है, तीर है और खंजर है। जब उस औरत ने देखा तो लोगों से पुकार करके कहा ऐ लोगों जरा बताओ ये कौन सी जमात है, आखिर ये कहाँ जाना चाहती है? तो बताने वाले ने बतलाया था, कहने वाले ने कहा था कि ऐ खातून सुनो, ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये गाजी के दीवाने हैं, ये गाजी के चाहने वाले हैं, ये गाजी के मत वाले हैं। क्योंकि गाजी की बारगाह में जो इंसान सच्चे दिल से लौ लगा करके दुआ मांग लेता है अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। तुझे मालूम नहीं है सैयद सालार मसूद गाजी कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है, बल्कि अपने वक्त का ताजदार रूहानियत। और जब ये सुनती है तो सरकार गाजी पाक की रूहानियत की जानिब लो लगा करके और सरकार गाजी की दुआएं दे करके कहती है कि आए बहराइच वाले सरकार आपकी बारगाह बड़ी अजमत वाली बारगाह है, आपका करम बहुत नरम है। ऐ गाजी सरकार आप दुआई फरमाइए अगर मेरा बेटा आज जंग में फतेहयाबी होकर के लौटेगा तो ऐ गाजी सरकार मैं अपने बच्चे को तेरी बारगाह में गुलाम की हैसियत से भेजूंगा। वक्त का बादशाह है लेकिन गाजी से बढ़कर के बादशाह उसके पास नहीं है। गाजी की बारगाह में गुलाम की हैसियत से भेज दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा आप दुआ करती है कि उधर क्या होता है कि आपका बेटा जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो होता है वो जंग में फतेह हासिल कर लेता है और हासिल करने के बाद में अपने घर में वापस आता है, वालिदा की बारगाह में हाजिर है और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है ऐ अम्मी जान बहुत मुबारकबाद है, आज आपकी दुआओं के सदके में अल्लाह ने मुझे फतेह अता फरमा दी है। तो उनकी वालिदा ने चीख करके कहा था बेटा अब तक जो तूने जंग की है बिला शक व शुबा मेरी दुआओं से तूने जीत हासिल की है, लेकिन आज जो तू जंग जीत करके आया है ये मेरी दुआ का असर नहीं है बल्कि ये दुआ का असर तो बहराइच वाले सरकार दुआओं का असर है। अल्लाह
जा ऐ मेरे बच्चे अब देर ना कर फौरी तौर पे दयाले हाजिर पाक में हाजिर होने के लिए तैयारी शुरू कर दे मैंने ये मन्नत मान रखी है कि जब मेरा बेटा जीत जाएगा तो ऐ गाजी दूल्हा तेरी बारगाह में हाजिर होगा अल्लाह अकबर कबीरा अब वो बादशाह अपने घर से चला है और गाजी की बारगाह में पहुंचा है दयाले गाजी में पहुंचा है किचन बरबत सामने खड़े हुए नजर आते हैं जो ये कहते हैं कि ऐ बादशाह आखिर तुझे हो क्या गया है तू कहाँ आया है तो बादशाह कहता है मैं गाजी की जियारत के लिए आया हूँ गाजी की बारगाह में आया हूँ तो बदबख्तों ने कहा था कि जो तू मजार देख रहा है ये गाजी के असली मजार नहीं है गाजी का असली जिस्म अतहर कहीं और मदफून है जा कहीं और चला जा अल्लाह अकबर कबीरा फिरोज शाह तुगलक जो होता है वह हैरान और परेशानी के आलम में डूबा है और सोच और फिक्र में मुब्तला है कि ऐ पाक परवरदिगार आलम कोई ऐसा अल्लाह का बंदा मिल जाए जो मेरी रहनुमाई फरमा दे जब बादशाह ने बहराइच की धरती पर लोगों से पूछना शुरू किया है तो तमाम तर लोगों ने बैक जुबान होकर के कहा था कि ऐ बादशाह सुन ले बहराइच की धरती पर एक ऐसा अल्लाह वाला है जो साहिब कश्फो करामत है जिसे जमाना हजरत अमीर माह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करता है कबीरा हजरत अमीर माह के नाम से याद करता है बादशाह हजरत अमीर माह की बारगाह में पहुंचा है और बारगाह में पहुंचने के बाद में अर्ज करता है कि ऐ अमीर माह अब हम ये बात जानना चाहते हैं कि बहराइच में जो मजार है क्या वो गाजी का असली मजार है या गाजी का असली मजार नहीं है तो हजरत अमीर माह इरशाद फरमाते हैं अरे नादा जिस जगह तू खड़ा है जिस बहराइच की धरती पे खड़ा है यही वो जगह है जहाँ पे सुल्तान शोहदा तशरीफ फरमा है उसका जिसमें जहाँ पे मौजूद मजबूर है कबीरा अब बादशाह सोच में पड़ जाता है तो हजरत अमीर माह फरमाते हैं ऐ बादशाह सुन ले तुझे मालूम नहीं है कि फला तारीख में फला वक्त में फला रोज में मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा था कि सरकार गाज़ी पाक है अपनी मजार से निकले थे और निकल करके छठ की जानिब चले गए थे कबीरा जब आप वहां से वापस हुए थे तो मैंने खुद देखा था कि सरकार गाज़ी पाक है इसी मजार में दाखिल हो गए थे कबीरा बादशाह को यकीन हो जाता है वो बेचैनो बेकरार हो जाता है और बेचैनी के आलम में डूब करके कहता है कि हुजूर अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है एक आखिरी तमन्ना है हुजूर आप मेरी तमन्ना को कबूल फरमा लीजिए हजरत अमीर माह फरमाते हैं आखिर की चाहता क्या है तो बादशाह कहता है हुजूर जब आपने इतनी रहनुमाई फरमा दी है तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ में मैं दयाले गाजी तक पहुँच जाऊँ अल्लाह अकबर कबीरा अब हजरत अमीर माह है वक्त के जलील कदर अल्लाह के वली है बादशाह के साथ में चल रहे हैं हजरत अमीर माह के बारे में तारीख यही मिलती है स्रोत यही मिलता है रिवायतें यही मिलती है कि जब मेरे हजरत अमीर माह जब बहराइच की सरजमी पर चलते थे तो कभी भी अपने पूरे कदम को रख करके नहीं चलते थे कभी अंगूठों के बल चला करते थे उंगलियों के बल चला करते थे अल्लाह अकबर कबीरा अब हजरत अमीर माह है अल्लाह अल्लाह दयाले गाज़ी की जानिब बढ़ रही है लेकिन पैर को सही तरीके से नहीं रख रही है आप पंजों के बल चल रहे हैं अंगूठे के बल चल रहे हैं तो बादशाह ने देखा तो बादशाह ने चीख करके कहा था हुजूर एक बात समझ में नहीं आ रही है रास्ता बिल्कुल क्लियर है रास्ता बिल्कुल क्लीन है रास्ते में कोई खराबी लायक नहीं है आप पूरे कदम को क्यों रख करके नहीं चल रहे हैं तो हजरत अमीर माह ने फरमाया कि ऐ बादशाह तू मेरी जुबानी सुनना चाहता है क्या अपनी नजरों से देखना चाहता है क्या अपनी नजरों से देखना चाहता है तो बादशाह ने कहा था हुजूर अगर मैं अपनी निगाहों से देख लूं तो क्या ही करम होगा कबीरा अब हजरत अमीर माह अपनी टोपी शरीफ को उतारते हैं और बादशाह के सर पे रख देते हैं बादशाह ने जैसे ही टोपी अपने सर पे रखी है तो क्या देखता है कि बहराइच की धरती पर शोहदा की लाश नजर आ रही है शोहदा की लाशें नजर आ रही है कहीं पर कदम रखने की जगह नहीं लग रही है अल्लाह अकबर कबीरा कौन अमीर माह आखिर अमीर माह का मकाम क्या है अल्लाह अकबर कबीरा और जरा ज़हन को हाजिर फरमाइएगा कि हजरत अमीर माह जो है कौन है सरकार गाज़ी पाक की बारगाह के ये एक अदना से खादिम है तो सरकार गाज़ी की बारगाह में झाड़ू लगाया करते थे
कबीरा। तभी तो कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला।